Namaskar, good afternoon. The Union Cabinet has approved a reserve price for the 2G spectrum auction for 14,000 crores. आपकी जानकारी के लिए जो एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई थी, which was chaired by श्री P.C. Chidambaram, had recommended it 16,000 crores. And the TRAI had said it should be 18,000 crores. The government has now decided to reduce it by 22% and keep it at 14,000 crores. Well, to this, we'd like to add few points. And if you have to recall, it was right in 2008 that the BJP had charged about a major defalcation in the allotment of the 2G spectrum. And no sooner the CAG had said that it has resulted in a loss of 1,76,000 crores. Even when the matter was referred by the Central Vigilance Commission, the CBI also came with a small figure though, about 30,000 crores. And BJP's stand was vindicated when the Supreme Court set aside 122 licenses and said there has been a loss. And they said nothing less than 1,76,000 crore had been lost. Today the government has fixed a base price, a reserve price, though lower than what has been suggested by the TRAI. लेकिन इसमें एक तथ्य स्पष्ट रूप से होके आ रहा है कि उस दौरान जब 1,76,000 करोड़ का आरोप लगा था केंद्र की सरकार पर, मनमोहन सिंह जी की सरकार पर, तो कपिल सिब्बल साहब ने जब राजा जेल चले गए थे और कपिल सिब्बल साहब को यह मंत्रालय दिया गया, तो उन्होंने कहा कि यह तो अनुमान पर है, he gave a zero loss theory. We'd like to ask him a question: if it was a zero loss, how come the government today has decided to fix a base price or a reserve price for 14,000 crores? This is one question we would like to ask him. The other people in the government and the votaries of the government and the spokespersons of the Congress party had said it's a speculative loss. Well, that theory has also been trashed and it has been tossed out. That it was not a speculative loss. It was a loss which was in fact had happened to the exchequer. And those who were involved in it also went into the jail. The BJP had alleged that it was a trial work. सभी तीन लोगों का उसमें हाथ था. हमने कहा कि प्रधानमंत्री भी अपने आप को इस आरोप से मुक्त नहीं कर सकते हैं. हमने ये भी कहा था कि पीसी चिदम्बरम अपने आप को इस आरोप से मुक्त नहीं कर सकते हैं. और राजा तो जेल में गए ही, क्योंकि वो भी एक मुख्य सदस्य और आरोपी के रूप में थे. लेकिन आज ये तय करना कि ये सचमुच इसकी कीमत इतनी है और कैबिनेट ने स्वयं तय किया, ये पूरी तरह से प्रमाणित करता है कि देश का नुकसान हुआ था. और अभी भी ये कहेंगे कि हम ऑक्शन करेंगे और उससे, लेकिन तब तो राजा ने 1600 करोड़ में दिया था और 2008 की तुलना में आज भी मार्केट के प्राइसेस डिप्रेस्ड हैं. टेलीकॉम का सेक्टर नीचे दिख रहा है. तो हमारा आरोप पूरी तरह से प्रमाणित होता है कि देश का एक बड़ा नुकसान हुआ था, लूट हुआ था. और देश आज भी इस सवाल को जानना चाहती है. लेकिन इसके साथ कुछ और तकनीकी विषय हैं. ट्राई के एक्ट में, उसके कानून में संशोधन हुआ और सेक्शन 11 में यह तथ्य जोड़ा गया कि यदि ट्राई के रिकमेंडेशन को सरकार स्वीकार नहीं करती है, if TRAI's recommendation is not accepted by the government and a fresh recommendation is made, that reference should be sent back to TRAI and the TRAI shall give back its recommendations again. And on 29
5/2012 29/5/2012 को सरकार ने ट्राई को फिर से लिख के भेजा, एंड दे सेड प्लीज स्पेसिफाई द इम्पैक्ट ऑफ द रिकमेंडेड प्राइस ऑफ 18,000 crores एज बेस प्राइस, एज अ रिजर्व प्राइस। और मेरे पास ट्राई का पूरा रिपोर्ट है जो लगभग 140 पन्ने का है, और इस 140 पन्ने में ट्राई ने, जो अपने आप में एक संवैधानिक संस्था है, उसने इस पूरे पक्ष का कि 18,000 करोड़ क्यों इसका रिजर्व प्राइस होना चाहिए, उसका फिर से सरकार के निर्देश पर फिर से अध्ययन किया, उसकी पूरी एनालिसिस की। And if it is required, I'll submit the 2 paras and the 2 important pages in that report. And under para 25 on page 17 of the TRAI report given to the government, the TRAI has said that with just 5 paise a minute increase in tariff, 5 पैसे का अगर प्रति मिनट दाम बढ़ेगा, the margins are going to be higher than the base case every year. And there would be profit in all the following years. ट्राई ने कहा है कि मात्र 5, जो बाजार में ये पिछले 3 महीने से कहा जा रहा है कि दाम बढ़ जाएंगे, दाम बढ़ जाएंगे, ट्राई ने उसको फिर से अध्ययन किया और पूरी तरह से अध्ययन करने के बाद कहा कि अगर फिर से ऑक्शन हो तो 5 पैसे अगर प्रति मिनट की बढ़त होगी, जिस पर ये आज का बेस भी पार करेंगे और आने वाले दिनों में प्रॉफिट में रहेंगे। और अंतिम रूप से उन्होंने पैरा 30 जो पेज 20 पर है, द एडिशनल इंपैक्ट आउट ऑफ प्रेजेंट रिकमेंडेशन विल बी रिड्यूस्ड बाय 5 पाइस पर मिनट, एंड इफ द सर्विस प्रोवाइडर्स गो अ बिट बियॉन्ड इट, देन दे कैन कवर अप द सो कॉल्ड लेगेसी लॉसेस। हम सरकार से पूछना चाहेंगे कि ये प्रतिवेदन जब सरकार के पास है और एक एक पैसे का पूरे देश का पूरे अध्ययन के पश्चात ट्राई ने कहा था 18,000 करोड़ होना चाहिए, तो सरकार ने रिजर्व प्राइस कैबिनेट पर जाकर के 14,000 करोड़ किस स्थिति में किया? यह जरूर है कि सरकार तय कर सकती है, लेकिन देयर हैज टू बी ए कंसिडर्ड रीजन। द भारतीय जनता पार्टी वुड लाइक टू नो that what was the basis of reduction from 18,000 crores to 14,000 crores? What was the justification? I have scanned all the newspapers, I have scanned all reports, I have scanned all papers. Not one place any justification by the government or the cabinet has been given as to the reserve price being reduced from 18,000 crores to 14,000 crores. The Bharatiya Janata Party would like to know, why did the government, if so, decided to reduce the reserve price? What were the considered reasons in the cabinet to reduce the price? And third, the Bharatiya Janata Party would like to know, has the cabinet held a kangaroo sitting to reduce the reserve price arbitrarily? It can be nothing, but it is still, has the cabinet, just because it wanted to justify itself, has reduced the price? And the BJP feels it's again a blatant attempt by the Prime Minister, by the Home Minister, and those charged with this corruption. An attempt is being made to partially offset the charges made against them. हम स्पष्ट रूप से सरकार से जानना चाहेंगे, क्योंकि जब रिजर्व प्राइसेस कम होंगे तो ऑक्शन प्राइसेस शुरुआती तौर पर कम होंगे। आखिर सरकार ने ट्राई, जो अपने आप में एक संवैधानिक संस्था है, ट्राई विच इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी which has given specific reasons why and what would be the impact on specific analysis, has been trashed again by the cabinet, is an issue which the Bharatiya Janata Party would like to know and the country would like to know. There's a copy of that notification and there's a copy of this report which if anyone wants, you can pick it up and look into it. All the paragraphs have been marked here. बाबा अन्ना हजारे का अनशन
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से और कई कारणों से टूट गया है। हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं है, कोई टिप्पणी नहीं है कि वो राजनीतिक पार्टी बनाना चाहते हैं, राजनीति में आना चाहते हैं। Well, they have reasons to say that the politicians are not good in this country. They have every reason to say that. Possibly they are missing a fact that it's just not the politicians, but the functionality of the political institutions is also under question. But we have nothing to say about that. हमारे किसी को भी इस देश में अधिकार है पार्टी बना करके चुनाव लड़े, और लड़ना भी चाहिए, क्योंकि इस प्रक्रिया की जानकारी सबको होनी चाहिए। किस तरह से आम जनता में जाने के बाद लोग की आकांक्षाएं क्या हैं, किस प्रकार से मतदाता की उम्मीदें जगती हैं, किस प्रकार से मतदाता जब चुनाव मैदान में जाता है, कोई व्यक्ति चुनाव लड़ने, तो उस समय मतदाताओं की आकांक्षा क्या होती है, और जब संसद में बैठते हैं तो उस समय मतदाताओं की आकांक्षा क्या होती है। ये बड़ा अच्छा रहेगा और ज़रूर होना चाहिए, लेकिन ये हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय है कि इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी निरंतर ये कहती रही है कि हमें एक मजबूत कानून चाहिए, और आज भी हम कहेंगे कि इस देश में चाहे बाबा अन्ना हजारे का अनशन टूट गया हो, हम भी चाहेंगे कि इस देश में एक मजबूत कानून बने, एक लोकपाल विधेयक आए। और हमारा सवाल ये उठता है कि आखिर हम भी उस समिति के सदस्य हैं, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता भी उसमें सदस्य हैं, लेकिन हमें पूरी तरह से स्मरण है कि किस प्रकार से 29 दिसंबर की रात्रि 2011 में जब वो लोकपाल राज्यसभा से पारित किया जा सकता था, सरकार ने उसे टाल दिया और आज सिलेक्ट कमेटी के पास है। आज भी हम इस चिंता कर रहे हैं कि क्यों उसकी बैठकें रोज रोज ना करके उस पूरे प्रस्ताव को तैयार किया जाए। और भारतीय जनता पार्टी यह मांग करेगी और मांग करती है कि इस सत्र में जो मानसून अधिवेशन है, मानसून सत्र है, इस सत्र में एक मजबूत लोकपाल विधेयक पारित कराई जाए, और यदि यह पारित नहीं होता है और यह पेश नहीं होता है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी कांग्रेस पार्टी पर है, जिनके खिलाफ निरंतर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे।